Hello students, let us learn today how to multiply a complex number. Here there is two complex numbers Z1 a plus ib and the second one is Z2 c plus id. A and c are real, b and d are imaginary. It is in the form of complex number. Now you have to learn how to multiply these two complex number. So write these two complex number first of all a plus ib and then c plus id. This bracket showing here multiplication. Now as you know in algebra you follow the same. So first of all, you multiply C to A and again C to IB and write down here AC. Then plus, here plus, you write plus IBC. IBC. It is clear? This multiplied with this and this considering the sign before them. Now you multiply this to this. It will come here, it is plus plus, right sign plus I A D, IAD. Then to this plus I plus 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 I square BD. Here I square BD. Now you should know that I square is equal to -1. So write again AC plus take common I here and write BC plus AD. Then minus sign for this and BD. Now take these real numbers together. AC minus BD plus I BC plus AD, and this is your method and result of multiplication. If you understand, we will take a real problem and then also solve with this method. So here the Z1 and Z2 take one value. I will give you Z1 is 3 real part plus I5. Okay? And Z2 you write here 2 plus I6. Again you have got two real numbers. You have to find the product Z1 and Z2. So write this 3 plus I5 and multiply with 2 plus I6. Again apply the same process which you learned earlier. 3 2 is 6 plus 5 2 is I10, then I6 3 is plus 18, I18, and then I into I square, so you can write directly minus 5 6 is 30, because I into I square is equal to -1. So change this sign here. Now collect this real and imaginary. 6 minus 30 plus take I as a common and then 18 plus 10, 28. Okay, I 28. This is B. Here minus is 14, 24. 30 से 6 घटा दो तो 6 4 10 और 2 24 आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा. ये समझ गए. इसका रियल वैल्यू क्या आया? -24 और यहाँ प्लस I28 और यही आंसर है इसका.
समझ गए स्टूडेंट्स? लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर and there is a question, find the modulus of z is equal to 2 minus 3i. Here from general term, this modulus of z will be written like this. This will modulus, non-negative numbers. The value of modulus comes from the squaring. Take under root first, then square these and this and add a square plus b square. This is the modulus. Root over real part and imaginary part under root. So if you have to solve this question, you should write this question z is equal to 2 minus 3i. Take modulus like this and then take square root, this root, 2 square, then plus, then the minus 3, very carefully, square. So this will come root over 4, here plus minus 3 square will be 9, 3 3 are 9, and 9, this will be minus under root 13. Okay, this is your mode of z. Now if any mode स्क्वायर्ड, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये सीखने का चीज़ है. अभी हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं. तो वहाँ आप देखोगे कि जो भी मोड रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और इसका वैल्यू 13 आएगा. ये समझ में आ गया स्क्वायर का. ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू √5 + 3i. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो आप एक इजी मेथड पहले सिखाते हैं. z का इन्वर्स होगा तो इसको हम लोग z ऐसा लिख सकते हैं और ये क्या हो जाता है 1/z हो जाएगा. जब 1/z हो जाएगा, ये इन्वर्स है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है z इंटू, ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 आना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहे ना इसका कॉन्जुगेट, जैसा कि पहले भी बता दे रहे हैं फिर बता रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट ऊपर लिख दीजिए. कॉन्जुगेट और नीचे इसके मोड के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. बस हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाएगा. तो देखो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या होगा √5. ये साइन कॉन्जुगेट में चेंज होगा, माइनस आएगा और 3i आएगा. समझ में आया, 3i आएगा. यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हुआ, ये कॉन्जुगेट हो गया. और नीचे में अभी आपको हमने सिखाया इसको कि इसका मोड जो होगा, देखो मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का रूट है, इसका करेंगे प्लस 3 का है, +3 का स्क्वायर कर देंगे और रूट करते तो z निकलता. स्क्वायर किए हैं सिर्फ, देखो इसका निकालने के लिए रूट भी करना पड़ता और रूट करने के बाद स्क्वायर करते तो कुछ नहीं बचता. इससे बहुत आसानी से ये बन जा रहा है. तो देखोगे इसका आंसर भी आ गया. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो दिया रहे उसका कंजुगेट लिखो और नीचे में ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके लिख दो. तो ऊपर वाला वैल्यू तो √5 आ गया और -3i आ गया, और नीचे जब रूट का स्क्वायर करोगे तो ये 5 आएगा और यहाँ पर +9 आएगा. तो देखो आंसर क्या आएगा, √5 - 3i डिवाइडेड बाई 9 5 14. यदि आप
यहाँ यदि आप रियल को अलग और इमेजनरी को अलग करोगे तो इसका रूप ऐसा लिख सकते हो, √5/14 माइनस 3/14 I, ये आंसर. Okay, students, let us learn for class 11 complex number. Some more important thing, what is Argand plane? How the complex number z is equal to x plus iy and x minus iy will be represented in the polar representation form. So first of all, complex Argand plane is also known as complex plane. So you know from very beginning, if in a plane there is x and this is x-axis, this is y-axis. Any point in the Cartesian coordinate system, suppose there is a point P, and in Cartesian coordinate system, x comma y is the position of this point. Understand? But these points, suppose with value x is equal to 3 and y is equal to 2. Up to this you know very well from very beginning. Now today you will learn about the complex plane and what are its terms. This point gives the position. Here this is along the x-axis x value, this point, known as abscissa also. The value is 3, you must understand. And this will give this height, which is represented by y, or this is also y, and this will be 2 unit, and x is equal to 3 unit. Understand? 3 unit. Now, for complex, you have to join this. This is origin. This is origin, 0, 0. And in Argand plane or complex plane, if this point can be represented in the form of complex number, then it is known as a Argand plane or complex plane. So how that, and that will be represented in polar form. So you join the pole. In polar, this origin is known as the pole. This point is pole. And with this angle theta in radian, and this position value is represented as r. So in polar form, this whole thing will be represented as r comma theta. R is your this length. How this length will be calculated in Cartesian form, you know, in a right angle triangle by Pythagoras, this r will become p square plus b square. So this will be 3 square plus 2 square. Okay? And root over. So in this way you can get this r. In general form, this r will be under root x square plus y square. Understand this thing? Now for polar representation, it should be represented as r theta. So this, first of all, you change this, resolve this r along the x-axis. So therefore, you learn here, this x value will be written as r cos theta. Understand? This is important in polar form. R cos theta is the resolved part equal to x. Similarly, this y will be r sin theta. Y will be r sin theta.
Understand? So this is resolved along the theta, cos theta, and along the perpendicular, this side, sin theta. You should always remember this resolution of this R vector. Modulus, now you come in the polar form to find the modulus. So here it is R, here it is R for under root. What will happen? Under root. Suppose you will not give under root here, what should you write? R square is equal to x square plus y square. R square is equal to x square plus y square है ना, तो सिर्फ R जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, और इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस हुआ, ये आर क्या हो गया, मॉडुलस हो गया। कैसे निकला? इस तरह से निकला। अब यदि हम लोग ये पोलर में जाएंगे तो ये दोनों चीज़ को, इसको और इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करिए। तो देखिए इसको हम लोग पहले करेंगे एक्स वाले को, तो इधर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ गए? अब दोनों को ऐड करो तो देखो क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में आर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया है आर स्क्वायर के बराबर। अब इसमें यदि आर हम लोग लिख रहे हैं तो देखो सेम चीज़ आ गया। अब यदि कॉम्प्लेक्स में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, मान लो कि जेड लिखना चाहते हैं, जेड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब इसमें यदि जेड नंबर है, आर लिख रहे हैं, आर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखो एक्स का रिप्लेसमेंट हो गया आर कॉस थीटा से यहाँ से, और यहाँ आर साइन थीटा से हो गया, इसमें आई आ गया, और ये जेड रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। R is the मॉडुलस, R लेंगे तो मॉडुलस होगा, किसके चलते आएगा, इसके चलते आएगा। तो ये हो गया। अब एक चीज़ आप ध्यान से सीखोगे कि ये जो माइनस वाला है, सपोज इस पॉइंट को नीचे की तरफ एक्स एक्सिस को मिरर समझते हुए यदि हम लोग यहाँ से नीचे आकर के इस P पॉइंट का रिफ्लेक्शन Q ले, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, x वही रहेगा, y माइनस हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x माइनस वाई। और जब ऐसा हो जाएगा तो दूसरा वाला जो z है, ये कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट, तो वो कैसा आएगा, z r कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। एग्री? क्योंकि ये y का वैल्यू में माइनस आ गया है। तो देखो ये दोनों जो होता था जनरल में x प्लस आई वाई, यहाँ पर i है इमेजिनरी, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। तो बहुत अच्छी तरह से आप सीख गए, और इसके सहारे कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। एक्स एक्सिस का रियल पार्ट, और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो, एक्स एक्सिस का रियल पार्ट सिर्फ रियल ही होता है, एक्स में रियल नंबर्स मिलेंगे सब, इसमें देखना आई नहीं है। लेकिन वाई एक्सिस पर आपका इमेजिनरी पार्ट मिलेगा और उसका कॉन्जुगेट भी मिलेगा। ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन। जिस प्लेन पर ये दिखाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं।
और उसमें आर्गन प्लेन भी बोल सकते हैं। पोलर में आर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोऑर्डिनेट में एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस तरह से इसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉस थीटा साइन थीटा है और कुछ एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है मोड है एक्स का, और साथ साथ चाहे ये कैसा भी पोजीशन हो, सपोज यहाँ से एक सर्किल हम लोग लेके जाएंगे तो ये आर्क इस सर्किल पर रोटेट करके डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे, और वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा का वैल्यू -पाई से पाई के बराबर या पाई से कम होना चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिला है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बनाएंगे। प्लीज़ ट्राई। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक क्वेश्चन के सहारे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कन्वर्ट, बदलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, जेड से लिखा गया है, जेड इज इक्वल टू √3 + i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आई के चलते। किस फॉर्म में बदलना है? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म जैसा कि अभी अभी सीखे थे हम लोग। तो इसको शुरू करते हैं और इसका सॉल्यूशन आप देखो कैसे बनाएंगे। एक सीख जाओ, किताब के सारे क्वेश्चंस को बना सकोगे। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक प्लेन बनाते हैं। इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं है तो कहाँ है, कैसा है, इसको कहीं पॉइंट है या पोजीशन है, तो मान लो कि ये √3 है प्लस i है, तो इसका जनरल रूप आप जानते हो ना, x + i y है। अब इसमें i के बगल में कुछ नहीं है तो आप यहाँ लगा सकते हो x + i। x के जगह पर क्या लगा दो? √3 लगा दो। ये देखो x हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। ध्यान दो, 1 से y है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये समझ में आया दोनों चीज़? ये x है, ये y है, ये है, और ये z का रूप आ गया। तो z का जो मॉड हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते थे? इसका यदि हम लोग इसका पोलर में फिगर बनाना चाहेंगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ये पॉइंट होगा, ये मॉड्यूलस होगा जिसको r बोलते हैं, और ये थीटा होगा जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं। r मॉड्यूलस होगा तो, और थीटा आर्गुमेंट होगा जो एंगल होगा। अब यही पॉइंट पोलर में r थीटा के रूप में कैसा दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसा दिखेगा? तो इसके लिए जैसा कि हम लोग r निकालने के लिए क्या करते थे, x² और y² निकालने से r निकल जाता था। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √ओवर होगा। क्लियर है? x² + y², इस पॉइंट का √3 है, इस पॉइंट का पोजीशन क्या है? √3, 1। अब इसके सहारे हम लोग देखो r का वैल्यू तो निकल गया। इतना निकल गया, √3 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 1 आएगा, ये 4 आया, रूट करेंगे तो इसका वैल्यू हालांकि ±2 आएगा, लेकिन r कभी भी 0 से बड़ा ही होगा तो नेगेटिव नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 2। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख गए। फर्स्ट वाला जो ये रियल एक्सिस है, x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। इस r को ओरिजिन से, पोल से जब किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं और इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ये सारा टर्म जानने के बाद अब जैसा कि आप सीखे थे, जब हम लोग इसका पोलर फॉर्म लेंगे तो यही जेड नंबर कैसे लिखा जाएगा? r क्या लिखते हैं? cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये थीटा इसका आर्गुमेंट है, r मॉड्यूलस है, r निकाल चुके हैं। अब देखो ये जो x का कंपोनेंट है, जिसको x हम लोग मान रहे हैं, √3 है, ये किसके बराबर है? r
कॉस थीटा। ये क्लियर हुआ। और y किसके बराबर होगा? r साइन थीटा। तो r मालूम है हम लोगों के पास, तो अभी हम लोग कैसे r से थीटा निकाल सकते हैं? तो देखो क्या लिखेंगे, x बाई r इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब x का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ √3 है, तो यहाँ √3 लगा दो। और r का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 लगा दिए। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू यदि √3/2 है, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कॉस के किस एंगल का वैल्यू होता है ये। तो ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना √3/2। और 30 को यदि रेडियन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? कॉस π/6 छेदिया 18। ये π/6 जो है किसके बराबर है? यही थीटा है। ये समझ में आया? तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आया? π/6 आ गया। ओके। अब हम निकालेंगे, इससे भी निकाल के देखते हैं तो क्या होगा। तो कैसा होता है ये? साइन y बाई, यहाँ देखो y है, r से डिवाइड करो, y/1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये समझ में आया? अब इस y का वैल्यू सॉरी, ये r से डिवाइड करना चाहिए था, नॉट 1। ओके, तो y का वैल्यू कितना है? 1 है, y 1 है, तो 1/2। अब ये देखो हाफ जो है, हम देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू यदि हाफ है तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, साइन हाफ। और इसको रेडियन में लिखेंगे तो साइन π/6 लिखेंगे। 6×18 30 डिग्री आया, हाफ आया। ये सारा चीज़ मॉडुलस और आर्गुमेंट के सहारे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है पोलर फॉर्म में। आर थीटा के सहारे पोलर पहचाना जाता है। ये आर है, थीटा है, इसका ये पोजीशन होगा, इस एंगल में इतने दूर पर है। देयरफॉर फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि दिस z विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन √3 + i in the polar form r is 2 अंडर ब्रैकेट cos थीटा का वैल्यू कितना है? π/6 और प्लस है i रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? साइन π/6। Therefore, finally, the answer is 2 cos π/6 plus I sin π/6। ये आंसर होगा कन्वर्ट होकर के। दिस z number converted into this much. Okay.